Okay, so our today topic is some numericals on the capacitance. So these numericals are based on series combination and parallel combination of capacitance. So when we take the series combination, so we connect the capacitors in this fashion. C1 and C2, they are connected with the voltage source. Now, what is the total capacitance? So total capacitance C is equal to C1 into C2 divided by C1 plus C2, C1 plus C2. So this formula is used to find the total capacitance when the capacitance they are connected in series. Okay, when the capacitance they are connected in parallel like this, parallel. They are connected with the voltage source V, capacity is C1 and C2. Now find the total capacitance in the parallel. So in the parallel, total capacitance, that is C is equal to C1 plus C2. So based on these two formulas, this formula number 1 and this formula number 2, we will do some numericals. So let me take my first numerical, the first numerical. So we are given a circuit. We are given a circuit in which we have combination of capacitance, and this is the combination of the capacitance, and this arrangement is connected with the external voltage source. This is C1, this is C2, and this is C3. Now the values of all these capacitors C1, C2, and C3, that is given to us. So it is C1 is 3 microfarad, 3 microfarad, and this is 6 microfarad, 6 microfarad, and this C3 it is 10 microfarad, 10 microfarad, and this V is equal to 50 volt. 50 volt. So the first question is find equivalent capacitance of this circuit. Equivalent capacitance or total capacitance of the circuit. So how to find out? Very easy. So first see this combination. This is a series combination. C1 and C2 they are in series. So for the series combination, we will use this formula, this C. So by using this formula, now we can find that C is equal to, what is the value of C1? 3 microfarad, 3 microfarad, multiply 6 microfarad, divided by 6 plus 3, 9 microfarad. 6 plus 3, 9 microfarad. So 9 microfarad. So now I can cancel this 3 is a 9, and this 3 2 is 6. So finally, the C is equal to 2 microfarad. So अब क्या हो गया? अब यहाँ पे इन दोनों को मिला के एक कैपेसिटर बना और जिसकी कैपेसिटी है 2 माइक्रोफैरड. So अब मैं इन दोनों कैपेसिटर्स को रिप्लेस कर सकता हूँ एक 2 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर के साथ, राइट? सो अब मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करता हूँ. इक्विवेलेंट सर्किट, तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सर्किट, रिड्यूस्ड सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट, या इसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड सर्किट और रिड्यूस्ड. क्योंकि देखो भाई हमारे पास 2 रेजिस्टेंस 2 कैपेसिटेंस थे सीरीज में, अब उनकी जगह एक सिंगल कैपेसिटर लगाएंगे, ये सिंगल कैपेसिटर लगाएंगे, और ऑलरेडी ये नीचे 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर तो ऑलरेडी है हमारे पास, ये 10 माइक्रोफैरड का. अब देखो, और ये दे आर कनेक्टेड विद ए वोल्टेज सोर्स और 50 वोल्ट, ये अरेंजमेंट बची है ना. तो ये आ गया 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर, और ऑलरेडी ये तो गिवन था 10 माइक्रोफैरड, और ये V इज इक्वल टू 50 वोल्ट, ये हमारे पास गिवन है. तो अब ये दोनों कैसे हो गए? पैरेलल में हो गए, और पैरेलल के लिए हमें पता है ये फार्मूला यूज करते हैं C1 प्लस C2. तो कितना हो गया? 10 प्लस 2 12 माइक्रोफैरड. कितना हो जाएगा? 12 माइक्रोफैरड. सो ये कितना हो गया? C इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड प्लस 10 माइक्रोफैरड
So C is equal to 12 माइक्रोफेरेड। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई वो 12 माइक्रोफेरेड आ गई। ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसके सेकंड पार्ट में हमारे से पूछा गया है कि फाइंड आउट द चार्ज ऑन कैपेसिटर C1 एंड चार्ज ऑन कैपेसिटर C2, राइट। तो अब हमें चार्जेस निकालने हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है दैट इज ए वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, बट उसमें चार्ज सेम फ्लो करता है। सो अगर चार्ज की हम बात करें, सो चार्ज तो फिर दोनों में सेम फ्लो करेगा। अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो चार्ज दोनों में सेम फ्लो होगा। तो निकालते हैं हम कि वो चार्ज कितना होगा, राइट। सो सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम फ्लो करेगा। सो यहाँ पे अगर चार्ज एंटर हुआ, सपोज यहाँ पे चार्ज पहुंचा Q और यहाँ से वो डिवाइड हो गया, Q1 इधर गया और Q2 इधर गया। सो इसका मतलब अब C1 और C2 में दोनों में Q1 ही फ्लो करेगा, राइट। Q1 ही फ्लो करेगा। अब वो Q1 कितना निकालेंगे, Q1 दैट इज इक्वल टू C1 इंटू V, राइट। तो अब देखो यहाँ पे Q1 इज इक्वल टू, ये C1 नहीं लिखेंगे, ये C इक्विवेलेंट वाला आएगा, C इक्विवेलेंट, जो इक्विवेलेंट आया है, क्योंकि अब ये दोनों कैपेसिटर एक 2 माइक्रोफैराड के इक्विवेलेंट हैं। बात मेरी समझ में आ रही है। सो अब देखो कैसे Q यहाँ पे पहुंचा होगा, सो इधर गया होगा Q1 और इधर गया होगा Q2। तो जो Q1 है वो अब 2 माइक्रोफैराड में जा रहा है, वो एक्चुअली इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, राइट। सो अब क्या लिखेंगे, अब ये 2 माइक्रोफैराड है ना C इक्विवेलेंट, तो इस 2 इक्विवेलेंट की जगह 2 माइक्रोफैराड, राइट। और वोल्टेज कितनी रहेगी यहाँ पे, वोल्टेज तो यहाँ पे 50 रहेगी, क्योंकि देखो ये 50 है, ये 50 है, तो ये पैरेलल में, ये तीनों पैरेलल में होगी, तो यहाँ पे भी 50 वोल्ट आएगी और यहाँ पे भी 50 वोल्ट आएगी, राइट। समझ में आ रहा है। ये दोनों कैपेसिटर और ये बैटरी तीनों पैरेलल में है, तो पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम होती है। यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे 50 होगी, यहाँ पे 50 होगी, राइट। सो अब देखो क्या होगा, ये है 2 माइक्रोफैराड, ये है 2 माइक्रोफैराड और ये वोल्टेज है 50, ये वोल्टेज है 50। सो जो Q1 आ गया मेरे पास, कितना आ गया वो 100, और इसको लिखेंगे माइक्रो कूलम। अब ये माइक्रो कूलम में बन जाएगा क्योंकि चार्ज है ये 100 माइक्रो कूलम। सो Q1 कितना हो गया, मींस जो C1 में, जो कैपेसिटर C1 में चार्ज है वो कितना है 100 माइक्रोफैराड, और C2 में भी कितना होगा, सेम होगा, C2 में भी कितना होगा, सेम होगा, है ना, सेम चार्ज। सो 100 माइक्रो कूलम का चार्ज फ्लो करेगा C1 में और सेम चार्ज फ्लो करेगा C2 में, ठीक है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास एक और अरेंजमेंट है, बहुत ही सिंपल सी अरेंजमेंट, एक सिंपल सा सर्किट गिवन है। तो ये सारे सर्किट बेस्ड क्वेश्चन है। मैं ज्यादातर प्रेफर करूंगा कि हम सर्किट बेस्ड क्वेश्चन करें, सर्किट को देख के। स्टेटमेंट में नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली सर्किट वाले क्वेश्चन ही लेके चलूंगा। तो एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। हमारे पास एक सर्किट गिवन है जिसमें एक कैपेसिटर यहां कनेक्टेड है और एक कैपेसिटर यहां पे कनेक्टेड है, और उसके बाद हमें यहाँ पे 2 कैपेसिटर ये कनेक्टेड है। दिस इज द होल अरेंजमेंट। और ये 2 टर्मिनल है, ये 2 टर्मिनल है, ये टर्मिनल हो गया A और ये टर्मिनल हो गया B। सो वी आर गिवन, जो फर्स्ट कैपेसिटर है इट इज 8 माइक्रोफैराड का है, जो सेकंड है वो भी, मींस ये सारे ही 8 माइक्रोफैराड के हैं, सारे ही 8 माइक्रोफैराड के हैं, 8 माइक्रोफैराड, 8 माइक्रोफैराड, राइट, सारे ही 8 माइक्रोफैराड के हैं। सो फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, find equivalent capacitance of this network, of this network। इजी है बिल्कुल, इस पूरे नेटवर्क का टोटल कैपेसिटेंस निकालना है, बहुत इजी है।
सो सबसे पहले इसके ऊपर फोकस करते हैं। ये दोनों के दोनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए। तो सीरीज के लिए C इज इक्वल टू क्या होता है ना, 8 माइक्रोफैरड इंटू 8 माइक्रोफैरड डिवाइडेड बाय 8 प्लस 8 16 माइक्रोफैरड। सो ये 8 2 जा 16 2 4 जा 8, सो कितना आ गया। अब ये दोनों कैपेसिटर रिड्यूस हो गए एक 4 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर के साथ। 4 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर से ये रिप्लेस हो गए। सो अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट देखो कैसा बनेगा। इक्विवेलेंट सर्किट, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है। अब ऐसा बनेगा ना। सो अब देखो ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है। तो ये तो 8 माइक्रोफैरड ही हुआ, ये भी 8 माइक्रोफैरड हुआ, और ये कितना आ गया 4 माइक्रोफैरड। अब ये तीनों पैरेलल में है, इजी है निकालना। तो सी कितना आ जाएगा 8 माइक्रोफैरड प्लस 8 माइक्रोफैरड प्लस 4 माइक्रोफैरड। सो कितना आ गया, सी इज इक्वल टू 20 माइक्रोफैरड, राइट। सो टोटल कैपेसिटेंस हमने निकाल दिया। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। अब हमारे पास एक अरेंजमेंट है जिसमें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को सैंडविच किया गया है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसमें डाइलेक्ट्रिक को सैंडविच किया गया है। और डाइलेक्ट्रिक को सैंडविच करने के दो तरीके हैं, या तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के थ्रू किया जाए या फिर वो सीरीज कॉम्बिनेशन के थ्रू किया जाए। सो लेट अस टेक एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये दो प्लेट्स हैं, and this is terminal A and this is terminal B। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, राइट। अब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, कैसे इंट्रोड्यूस किया। अब जो ये प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका भी A है और इसका भी A है, राइट। इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस वो हमें पता है, वो हम लेके चलते हैं। ये D डिस्टेंस है इन दोनों प्लेट्स का। क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है, प्लेट्स के बीच की सेपरेशन गिवन है। अब इसके बीच में हमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालना है। सो हमारा जो फर्स्ट केस है, मैं दो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालता हूं, दो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालता हूं। एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ये है, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ये है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है। दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ये है, ये दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। ये ऐसे करके इस अरेंजमेंट के थ्रू हमने दो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंट्रोड्यूस किए। एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, दूसरे का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। तो हमें पता है कि जैसे ही डाइलेक्ट्रिक ऐड किया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंट्रोड्यूस किया, कैपेसिटी को बढ़ना है। बिना डाइलेक्ट्रिक के कैपेसिटी क्या थी, विदाउट डाइलेक्ट्रिक के, जब इसके बीच में ये K1 K2 नहीं थे, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एयर में कैपेसिटी क्या होती है, C एयर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये पता है ना फार्मूला, ये एयर में होती है। बट जब हमने ये K1 और K2 डाल दिया, तब हमें पता है कि कैपेसिटी ने बढ़ना है। बट यहाँ पे कंफ्यूजन ये है बच्चों कि हमें पता लगाना है, अब ये K1 इस प्लेट के साथ एक कैपेसिटर बनेगा विद डाइलेक्ट्रिक, है ना, एक अलग कैपेसिटर की तरह ट्रीट करेगा, और ये भी एक अलग कैपेसिटर बन जाएगा। तो मैं इसको अब तोड़ के अगर दिखाऊं, इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर ड्रा करूं, तो फिर ये अरेंजमेंट कुछ ऐसे बननी चाहिए, ऐसे बननी चाहिए कि ये हो गया टर्मिनल A, ये हो गया टर्मिनल B, और बीच में हमने डाल दिया एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, ये डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, राइट। और इसको फिर मैंने फिर वही काम किया। ये टर्मिनल सेम टर्मिनल है A, ये सेम टर्मिनल है B, और इसके बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है
K2। तो ये अरेंजमेंट है। अब इसमें हम इजीली देख सकते हैं कि अगर मैं इसको पॉजिटिव चार्ज दूं ए को, तो इसका मतलब वो पॉजिटिव चार्ज फिर यहाँ पे भी आएगा, क्योंकि है ना, है तो एक ही चीज ना, है तो एक ही चीज। ये तो मैं जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूं। अगर ए को पॉजिटिव चार्ज दिया तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, पूरी प्लेट पॉजिटिव हो गई है, ये भी पूरी प्लेट पॉजिटिव हो गई। इसका मतलब बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा पक्का। तो लोअर प्लेट को तो फिर नेगेटिव होना है, लोअर प्लेट नेगेटिव होगी, ये लोअर प्लेट नेगेटिव होगी। अब देखो पैरेलल, ये एक ऐसा लगता है कि जैसे दोनों के दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हो, क्योंकि पैरेलल में जैसे अगर दो कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो ऐसी अरेंजमेंट बनती है ना, ये ऐसी अरेंजमेंट पैरेलल के अंदर ऐसी अरेंजमेंट बनती है। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, पॉइंट ए, पॉइंट बी। अगर पॉइंट ए को पॉजिटिव दिया तो इसका मतलब ये प्लेट भी पॉजिटिव हो गई, है ना। पॉइंट बी को अगर नेगेटिव दिया तो ये प्लेट भी नेगेटिव हो गई, ये पूरा नेगेटिव हो गया। सो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बना दो, है ना, कैपेसिटर्स का। तो यहाँ पे भी देखो दोनों की अपर प्लेट पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी दोनों की ये लेफ्ट वाली प्लेट पॉजिटिव है और राइट वाली प्लेट नेगेटिव है। यहाँ पे भी ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव है, नीचे वाली प्लेट नेगेटिव है। तो इसको मतलब ये जो पूरा अरेंजमेंट बना, ये पूरा अरेंजमेंट बना, दो कैपेसिटर हैं, दोनों के डाइलेक्ट्रिक हैं, ये पूरा अरेंजमेंट पैरेलल का बना, ये भी पूरा अरेंजमेंट पैरेलल का बना, ये पूरा पैरेलल का है। सो इसका मतलब क्या है कि इसमें फार्मूला लगेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो कैपेसिटी होती है, मान लिया इसकी कैपेसिटी आई है C1, इसकी कैपेसिटी आई है C2, तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो कैपेसिटी फिर बनेगी C इज इक्वल टू, वो तो फिर इसी फार्मूले से बनेगी C1 प्लस C2। और C1 और C2 निकालने का तरीका हमें पता ही है। C1 को कैसे लिखेंगे, C इज इक्वल टू, डाइलेक्ट्रिक के लिए फार्मूला क्या यूज करते हैं, डाइलेक्ट्रिक के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे, K1 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो हुआ क्या कि टोटल एरिया कितना था A प्लेट का, है ना। अब इसका मतलब आधा एरिया इसने ले लिया, आधा एरिया इसने ले लिया, है ना। तो इसने कितना लिया A/2। अब A की जगह A/2 यहां पे भी आएगा और A की जगह A/2 यहां पे भी आएगा। D तो सेम है, D सेम है। सो क्या फार्मूला बन जाएगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A/2, A की जगह आ गया A/2, राइट। और D तो सेम रहा, D सेम रहा। ऐसे C2 के लिए लिखेंगे, C2 के लिए, C2 का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K2, एप्सिलॉन नॉट सेम आएगा, A/2 हाफ हो, ये एरिया हाफ हो गया, और ये आ गया D। बस अब करना क्या है, बस इसको सोल्व करना है। सो इसका एलसीएम अगर ले हम, तो इसको ऐसे लिखते हैं कि ये 2 डिनोमिनेटर में ले आए, है ना, 2 ये डिनोमिनेटर में ले आए, यहाँ से 2 हटा के, तो ये हो गया 2D, ये भी हो गया 2D। सो मैं अब इसको ये हटा दिया मैंने यहाँ से, राइट। सो 2 को हम डिनोमिनेटर में लेके आ गए। अब इसका एलसीएम लेते हैं, तो ये आ गया 2D और ये आ गया K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A। अब देखो बच्चों, इसके अंदर हम एप्सिलॉन नॉट A यहां पे भी है और एप्सिलॉन नॉट A यहां पे भी है। एप्सिलॉन नॉट A कॉमन निकाल दें, सो C कितना आ जाएगा, C आ जाएगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A हमने बाहर निकाल दिया, ये नीचे 2D ऐसे लिख दिया हमने, बचा क्या, K1 प्लस K2, K1 प्लस K2। राइट। सो इधर आ जाओ, K1 प्लस K2 सो अब हमने क्योंकि दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया था, है ना, K1 प्लस K2। सो जो टोटल कैपेसिटेंस आ गई हमारे पास, वो कितनी आ गई, C इज इक्वल टू, ये आ गई हमारी टोटल कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस। ठीक है बच्चों, तो ये हम निकाल चुके हैं टोटल कैपेसिटेंस। अब हम करते हैं दूसरा अरेंजमेंट। टोटल कैपेसिटेंस ये आ गई हमारे पास। सो हमें अगर प्लेट्स का एरिया पता है, D पता है, K1 K2 की वैल्यू पता है, सो हम टोटल कैपेसिटेंस इस अरेंजमेंट की निकाल सकते हैं, राइट।
अब हम दूसरा इसके अंदर क्वेश्चन करते हैं कि अब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को लेंगे और उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालेंगे, और वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसे डालेंगे कि जैसे ये पैरेलल अरेंजमेंट बनी वो सीरीज अरेंजमेंट बने। जैसे यहाँ पे पैरेलल का फार्मूला यूज किया C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, वहां पे सीरीज का फार्मूला C इज इक्वल टू C1 इंटू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 यूज करके हम टोटल कैपेसिटेंस निकालें इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, सो देखते हैं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इवन ये जो डाइलेक्ट्रिक के क्वेश्चन है फाइनल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में हमेशा ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। सो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमारे पास है अगेन वी हैव ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो ये हमारे पास एक अरेंजमेंट है, टर्मिनल A एंड दिस इज सेकंड प्लेट विद टर्मिनल B, और अब हमने इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को डालना है। कैसे डालना है? अब प्लेट का एरिया इसका भी A है, ठीक है ना, इसका भी एरिया है A है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो भी हमें पता है, दैट इज D। अब हमने डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ पे ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसमें एक डाइलेक्ट्रिक ऐसे डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, और जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें हमने एक दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2, राइट। तो अब हमें निकालना है कि अब बताओ कि इसका टोटल कैपेसिटेंस कितना बनेगा, इसका टोटल कैपेसिटेंस कितना बनेगा। अब बच्चों इजीली देख सकते हो, अब क्योंकि ये हो जाएगा D/2, इसने कितना हिस्सा लिया D/2 और इसने भी कितना हिस्सा लिया D/2, एरिया सेम रहेगा, एरिया सेम रहेगा। सो जो टोटल कैपेसिटेंस के लिए फार्मूला यूज करेंगे C इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, यही फार्मूला यूज करेंगे, राइट। तो अब हमें पता होना चाहिए C1 कितना होगा, C2 कितना होगा। सो लिखते हैं, सो C इज इक्वल टू, बच्चों C1 कैसे लिखेंगे? C1 को लिखेंगे K1 एप्सिलॉन नॉट A, एप्सिलॉन नॉट A में कोई चेंज नहीं है, आपकी बात एरिया तो उतना ही है, सिर्फ बदला क्या D की जगह लिखेंगे D/2, सो ये आ गया D/2, राइट, मल्टीप्लाई। अब C2 की वैल्यू लिखेंगे K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D/2, राइट। सो ये हमने C1 C2 को न्यूमिनेटर में लिखा, अब लिखेंगे इसको डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में ऐड करके लिखेंगे, सेम चीज को लिखेंगे नीचे। सो K1 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D/2, बीच में प्लस का साइन, सो K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D/2। सो यहाँ पे अब न्यूमिनेटर को सोल्व करते हैं, डिनोमिनेटर को सोल्व करते हैं, तो मैं डायरेक्टली इसका रिजल्ट लिखूंगा, सोल्व आप कर लेना। तो इसको फाइनली जो C हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2, K1 प्लस K2 एंड 2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D, 2 एप्सिलॉन नॉट। सो ये हमारे पास आ गई टोटल कैपेसिटेंस व्हेन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज इन, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, दिस इज ए सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट स्टूडेंट्स। सो आज इतना ही करेंगे, बाकी अब करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।